तो आज फिर उसी को आगे हम बढ़ा रहे हैं कि फ्यूल में पहली बात आपको बता दिया कि ये जो फ्यूल है ये मेनली हम इसको कोल पे ले रहे हैं। कोल कोल का कंस्टिट्यूएंट आपको बताया कि कोल के अंदर एक क्वेश्चन जैसे आपको ये बताया गया कि कोल के कंस्टिट्यूएंट कुछ जलने वाले हैं जिसका कंबस्चन होता है, कुछ नहीं जलने वाले हैं। नहीं जलने वाले में कुछ ऐसे हैं जिनकी उपस्थिति से कोयला के अंदर कंस्टिट्यूएंट जलते हैं। तो मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ द कोल इज द कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड सल्फर आल्सो, ये जलते हैं। और केमिकल एनर्जी जो स्टोर्ड है इट इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। Just for example, you take carbon plus oxygen, you will get carbon dioxide plus heat. Similarly, hydrogen, it is burnt in presence of oxygen. It will give you steam or plus heat. Similarly, sulfur plus O2, you will get SO2 plus heat. So in this way, these are the combustible constituent of the coal. But oxygen in coal, it is not combustible. It helps in the combustion. Nitrogen, no use. So in this way, you can very easily understand what are the useful constituent of the coal. Now question arises that which type of the coal is best coal? Best coal means first of all you have to understand the coal. Suppose this is the peat and it is low quality of the coal, lignite, and then bituminous. So bituminous and then anthracite. So quality of the coal depends upon the percentage of the coal, percentage of carbon. जिस भी कोयले के अंदर हाई परसेंटेज कार्बन की होगी उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होगी. Means the quality of the coal depends upon percentage of the carbon. Simultaneously you can say the calorific value. So this is one way to understand about the quality.
This anthracite is also known as hard coal, and it is soft coal. Now there is another question regarding sulfur. So today I shall give you some idea about the dew point. Dew point. Do you know about the dew point? Any one of you know dew point? ड्यू पॉइंट आप जानते हो? Suppose there is a question of this type: high sulfur content in fuel ... of fuel gas or flue gas. Number one, decreases dew point. Second, increases dew point. Reduces, third, reduces combustion efficiency by limiting permissible temperature reduction. Limiting the permissible reduction, permissible temperature reduction. And the last is fourth option, या D option, both B and C. This is one of the question regarding the presence of sulfur in the coal. So just see here, presence of sulfur, high sulfur content in fuel. अब यहां पर आपको ऑप्शन के लिए ये दिया हुआ है कि ये फ्यूल को डिक्रीज करेगा ड्यू पॉइंट, मीन्स हाई सल्फर कंटेंट इन फ्यूल डिक्रीजेज द ड्यू पॉइंट.
Yeah, dew point. Decreases dew point or increases dew point. Reduces combustion efficiency by limiting the permissible temperature reduction. And fourth is both B and C. B and C command you can say here it is A and this is the B and this is the C and this is the D, like this D. तो बिफोर अंडरस्टैंडिंग हम आपको ये बताते हैं कि ये ऑप्शन सही है कि हाई सल्फर कंटेंट ड्यू पॉइंट को ये डिक्रीज नहीं करता, ड्यू पॉइंट को ये इंक्रीज करता है। नंबर 1 बी सही है। ये टेम्परेचर जो रिडक्शन के लिए आवश्यक है, टेम्परेचर लिमिटिंग वैल्यू को ये reduces the combustion efficiency. Combustion efficiency, you know, carbon change into carbon dioxide, hydrogen change into steam. तो वो जो टेम्परेचर है उसको लिमिट करता है। तो ऑप्शन तो सही है डी, माने बी भी सही है और सी भी सही है। लेकिन इसके पहले आपको हम ड्यू पॉइंट समझा दें कि आपने देखा होगा ड्यू पॉइंट क्या होता है। आपने ओस को गिरते हुए देखा होगा या पत्तियों के ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स पड़ी होती हैं, देखा है? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. देखा हो? Just like suppose this is the leaf. Leaf here, water drops like this. आप ऐसे भी आप देखो, suppose this is the flower, you will get some droplets, small droplets over the petals and sepals of the flower. नाम सुना होगा, petals and sepals, नाम सुना है? हेलो? अंखड़ी पंखड़ी नाम सुना है? ये जो नीचे Yes, का sir. भाग फ्लावर के नीचे जो होता है इसको कहते हैं पेटल्स। पेटल्स ऊपर का होता है पंखड़ी, ये अंखड़ी है या पंखड़ी। इसके ऊपर जो ओस के बूंद होते हैं ये ड्यू, उसको ड्यू कहते हैं, ड्यू ड्यू ड्यू। ये ड्यू कैसे बनता है? हेलो? ड्यू कैसे बनता है? कोई आइडिया नहीं है आपको कि हाउ ड्यू इज फॉर्म? This is the water equilibrium with vapor. This is the equilibrium. Now
if the vapor condenses, it come to the water side. ये आप फेज रूल में पढ़ चुके हैं. तो वेपर कंडेंस होती है. कंडेंस होने के लिए दो कंडीशन जरूरी होती है. वन इज द प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर या वेपर प्रेशर, यू कैन अंडरस्टैंड वेपर प्रेशर. एंड सेकेंड इज द टेम्परेचर. टेम्परेचर. Suppose I plot a curve like this. Suppose this is the curve and the temperature is here, it is 40 degree centigrade and the vapor pressure is here, pressure vapor pressure is 0.77 tar. Now again you reduce the temperature as well as pressure. This is the vapor pressure. Vapor pressure. It is 0.65 tar. So if you decrease the temperature, suppose you say it is 39, then it is 30 degrees centigrade. So at this pressure and 30 degrees centigrade, what will happen? You will get an equilibrium between water and vapor. Water and vapor. So this is the decreasing trend. So as soon as you decrease the temperature, after this, after 30 degrees centigrade, you say it is the 29.5. So now this is the vapor state. Now vapor will condense in the form of the dew. In the form of the dew. तो नाउ ये जो ड्यू किस पे निर्भर करेगा. अब आप देखिए कि ये जो सल्फर है, सल्फर ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा एंड सल्फर डाइऑक्साइड विल अगेन चेंज इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड. सल्फर ट्राइऑक्साइड प्लस वाटर वेपर अगर मिलेगा, इट विल फॉर्म H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड. So in this way, what happened? ये जो है ड्यू पॉइंट जो आप यहां देख रहे हो कि सपोज दिस इज द ड्यू पॉइंट, इसके नीचे जैसे ही आप टेम्परेचर करोगे तो वाटर वेपर विल चेंज इनटू ड्रॉपलेट्स, वाटर ड्रॉपलेट्स. सल्फर की उपस्थिति में क्या होगा? ये जो सल्फ्यूरिक एसिड बनती है, it will increase the dew point. Suppose this is the dew point. Dew point. तो ये वैल्यू क्या करेगी? ये इंक्रीज कर जाएगी. ये इंक्रीज कर जाएगी. तो ड्यू पॉइंट जब ये इंक्रीज कर जाएगी तो ये जो आप ऑप्शन देखे होंगे कि ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट है. ऑप्शन बी इज करेक्ट. बट सेकेंड थिंग, इफिशियंसी ऑफ कंबस्टन. सल्फर की उपस्थिति से कंबस्टन का जो इफिशियंसी है वो क्या करेगा? कम हो जाएगा. लिमिट, एक लिमिट है तो लिमिट करता है, इफिशियंसी को ये लिमिट कर देता है. तो इतना ही ध्यान रखिए कि ड्यू पॉइंट से
अगर ऑप्शन सी नहीं दिया गया है तो ड्यू पॉइंट क्या करेगा कि सल्फर का कंटेंट जितना ज्यादा होगा उतना ही ड्यू पॉइंट इंक्रीज करेगा। इतनी बात तो आप याद रख सकते हो। तो केवल हमने आपको ये कर्व के द्वारा बता दिया कि एक्चुअली ड्यू पॉइंट क्या होता है। तो एक निश्चित प्रेशर और एक टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे कि वाटर and vapors are in equilibrium. As soon as we reduce the temperature or reduce the pressure, vapor will change into droplets. So that temperature is called as the dew temperature. Means at that temperature, vapor will change into water droplets. So this is also important कि सल्फर का रोल ड्यू पॉइंट में क्या होता है। इसके बाद आपको एक बहुत जनरल सा ऑब्जर्वेशन है। पॉल्यूशन डिपार्टमेंट जितना भी ये इंडस्ट्री है उसके अंदर कहते हैं कि आप एटमॉस्फेयर में ये जो फ्लाई ऐश है इसको रोकिए, फ्लाई ऐश एटमॉस्फेयर में न जाए। आई थिंक you understand about the fly ash? हेलो, फ्लाई ऐश का नाम Yes, सुना sir. है? फ्लाई ऐश जानते हैं? ये कोयला जलता है तो बहुत स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ द कोल वो बाहर धुओं के साथ निकलता है जो कि एक कोलाइडल फॉर्म बनाता है। कोलाइडल, कोलाइडल जिसको हम कहते हैं एरोसॉल। एरोसॉल धुआं, धुआं में क्या है कि कोलाइडल साइज के कार्बन पार्टिकल एयर में फ्लोट करते हैं। एयर बिहेव्स एज dispersion medium and colloidal carbon particle behaves as a dispersed phase. So it forms a colloidal solution that is called as the aerosol. अब ये एरोसॉल अगर वायुमंडल में आता है, एटमॉस्फेयर में आता है कार्बन का, तो ये इन्वायरमेंट को पोल्यूट करेगा। तो इसको दूर करने के लिए कौन सा सिस्टम लगाया जाता है कि कार्बन का कोलाइडल पार्टिकल एयर में न जाने पावे। अगर ये जो कोलाइडल पार्टिकल है जो एरोसॉल बनाता है इसको हम कोआगुलेट करें, उसको बड़े बड़े कई पार्टिकल मिल करके बड़े पार्टिकल में ग्रो करावें तो वो क्या होगा, सेटल डाउन करेगा। तो ये जो सेटल डाउन करता है इसको कहते हैं फ्लाई ऐश। आपने काजल बनाया, बनाते हुए देखा है, आप तो नहीं बनाए होंगे काजल। आप जानते हैं सूट, सूट देखा है? सूट नहीं देखा है? हेलो, हेलो, सर देखे हैं सर। ऐसा होता है? कैसा सूट होता है? नहीं पता? किस रंग का होता है? हैं? बोलो। ब्लैक। ब्लैक होता है।
तो फ्लाई ऐश भी जो है कार्बन से बनती है, तो वो भी ब्लैक होती है। अब इस पे देखिए, इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। कहता है यह क्वेश्चन कि इलेक्ट्रोस्टैटिक precipitation in steam power plant is used to dot 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 dot. Option A, remove steam. Number 1. B, remove fly ash. C, draw coal powder into boiler. And fourth means D, to remove hardness of water, hardness of feed water, hardness of boiler feed water, boiler feed water. Now question is electrostatic system. Electrostatic system. Do you know electrostatic system? इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम आप जानते हो क्या है? दो इलेक्ट्रोड हैं, दिस इज द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड दिस इज द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। इसके बीच में अगर ये कोलाइडल पार्टिकल है, कोलाइडल पार्टिकल्स, already you know colloidal particles are charged particles. Colloidal particles are charged